بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں مستند اسلامی سوالات و جوابات، قرآن و حدیث کی روشنی میں علمنی دین، ایمان افروز واقعات اور دین اسلام کی سچی تعلیمات۔ آج کا مضمون ہے غار ثور کا مکمل واقعہ۔ حصہ اول، مسلسل کہانی کی شکل میں۔ مدینہ کی طرف سفر کرنے والی وہ رات بہت خاموش تھی۔ مکہ کی گلیاں سو رہی تھیں مگر دلوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ نبی کریم جو کہ ہر کسی کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، انہی لوگوں کی طرف سے ظلم و جفا کا نشانہ بن رہے تھے۔ کفار قریش کی دشمنی حد سے بڑھ چکی تھی اور اب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس اب اس شخص کو ختم کرنا ہوگا۔ اس رات رسول اللہ اپنے محبوب صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاموشی سے نکلے۔ دونوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا تھا، دل میں اللہ پر بھروسہ تھا اور قدم قدم پر حکمت کے نقوش تھے۔ مکہ کے اندھیرے راستوں سے گزرتے ہوئے وہ شمال کی سمت نہیں بلکہ جنوب کی طرف روانہ ہوئے، جہاں پہاڑوں کے بیچ ایک تنگ اور بلند مقام پر واقع تھا غار ثور۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا۔ اس راستے پر جانا گویا دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا، کیونکہ مدینہ شمال میں تھا اور وہ جنوب کی طرف جا رہے تھے۔ جب دونوں غار ثور کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ، اب یہاں چند لمحے ٹھہریں، میں پہلے اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں۔ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کیا تاکہ کوئی زہریلا جانور رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن ایک سوراخ بچ گیا جسے بند کرنے کے لیے حضرت ابوبکر نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ نبی کریم اندر تشریف لائے اور تھکن سے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران اس سوراخ سے ایک زہریلا سانپ حضرت ابوبکر کے پاؤں پر ڈسنے لگا۔ درد حد سے بڑھ گیا مگر وہ ہلے نہیں، صرف آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک قطرہ نبی کریم کے چہرے پر گرا، اب کی آنکھ کھلی۔ آپ نے پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کیا، رسول اللہ، کچھ نہیں، ایک سانپ نے کاٹ لیا۔ اپنے لون دہن اس زخم پر لگایا اور اللہ کے حکم سے فوراً شفا ہو گئی۔ غار کے باہر کفار قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی محمد کو قتل کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ہر طرف تلاش شروع ہو گئی، گھڑ سوار نکل پڑے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ کفار غار کے بالکل دہانے تک آ پہنچے۔ حضرت ابوبکر کا دل دھڑکنے لگا اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی نیچے دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر، لا تحزن، نہ مانن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام فرما دیا تھا۔ ایک مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا باندھ دیا اور ایک جوڑے کبوتروں نے وہیں انڈے دے دیے۔ کفار جب وہاں پہنچے تو بولے، اگر یہ لوگ اندر ہوتے تو یہ جالا اور انڈے کیسے ہوتے؟ ضرور یہ یہاں نہیں ہے، اور وہ واپس لوٹ گئے۔ 3 دن تک رسول اللہ اور حضرت ابوبکر اس غار میں رہے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر روزانہ کھانا پہنچاتی اور ان کا بھائی عبداللہ خبریں لا کر دیتا۔ حضرت عامر بن فورہ بکریاں چروا کر لے آتے تاکہ نشان مٹ جائیں۔ تیسرے دن جب کفار کی تلاش تھم گئی تب نبی کریم نے غار سے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر کے والد نے پوچھا، بیٹے، یہ اونٹ کس کے لیے لیا ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ کے لیے۔ پھر ایک رہبر عبداللہ بن عریقت جو کہ غیر مسلم تھا مگر امانت دار کو راستہ دکھانے کے لیے مقرر کیا گیا۔
3 ऊंटों पर यह काफिला मदीना की तरफ रवाना हुआ और बिलाखिर 8 दिन बाद मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ, जहां तला अलबदर अलीना के नगमे गूंज रहे थे। हिस्सा दुवम मुसलसल कहानी के अंदाज में। मदीना की समत सफ़र अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन गार सौर की खामोशी में ईमान की ललकार गूंज रही थी। पहाड़ के इस बुलंद, तंग, सुनसान रास्ते पर 2 महबूब हस्तियां छपी हुई थीं। एक नबी आखिरुज़्ज़मा और दूसरे उनके सबसे वफादार साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। दुनिया अंधी थी, मगर ये 2 चिराग रोशनी का जरिया बनने जा रहे थे। गार की तंगी, गर्मी और खौफ के साए सब कुछ था, मगर उन दोनों हस्तियों के दिल में एक यकीन था, अल्लाह हमारे साथ है। हज़रत अबू बकर हर लम्हा नबी के आराम का ख्याल रखते। अगर कोई आवाज़ आती तो वो गार के दहाने तक रींग कर देखते कि बाहर क्या हो रहा है। गार में रोशनी नहीं थी, सिर्फ अल्लाह का नूर था। कोई बिस्तर न था, मगर ज़मीन नर्म मालूम होती थी, क्योंकि वहां अल्लाह के महबूब आराम फरमा रहे थे। रात को हज़रत इस्माक निहायत एहतियात से खाना लेकर आते। इन्होंने अपने कपड़े को 2 हिस्सों में चाक किया, एक में खाना बांधा, दूसरे में पानी। इसीलिए उन्हें एज़ात और लंताकियन का लक़ब दिया गया। उनकी जवानी, तन्हाई और कुफार की निगरानी के बावजूद उनकी खिदमत ने तारीख में एक मिसाल कायम की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्बी बकर रात के वक्त मक्का में घूमते, कुफार की बातें सुनते, साजिशें सुनते, फिर गार सौर आकर नबी और हज़रत अबू बकर को तफसील से बताते। सुबह सादिक से पहले वो वापस मक्का चले जाते ताकि किसी को शक ना हो। हज़रत आमिर बिन फारा, जो हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम थे, रोज़ाना बकरियां चरा कर ले आते ताकि उनके कदमों के निशान मिट जाएं। ये सारी हिकमतें अल्लाह की तरफ से अता की गई थीं, कोई मामूली तदबीर नहीं थी। गार के अंदर 3 दिन और 3 रातें गुजर चुकी थीं। 3 दिन बहुत ज़्यादा थे। इस दौरान कई बार आवाज़ें आ चुकीं, बाज़ औक़ात गार के दहाने पर साए दिखाई देते, मगर अल्लाह की हिफाजत हर पल मौजूद रही। एक रात हज़रत अबू बकर ने नबी करीम से अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने हमें यहाँ हिफाजत दी तो ज़रूर मदीना तक का सफ़र भी खैर व आफ़ियत से होगा। नबी करीम मुस्करा दिए और फरमाया, अबू बकर, ये दीन कुर्बानी मांगता है, लेकिन अल्लाह अपने दीन के अलमबरदारों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। चौथे दिन जब हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्बी बकर ने इत्तला दी कि अब कुफार की तलाश मांद पड़ गई है, तो रवानगी की तैयारी हुई। हज़रत अबू बकर ने वो ऊंट लाया जो उन्होंने नबी के लिए तैयार रखा था। ऊंट पर नर्म गिदुआ बिछाया गया, पानी और खाने का इंतज़ाम किया गया, और नबी करीम गार सौर से बाहर निकले। वो लम्हा जब नबी ने गार से बाहर कदम रखा, तारीख का वो लम्हा था जब जुल्म से आज़ादी का सूरज तुलू हो रहा था। मदीना की जानिब रास्ता तवील और ख़तरनाक था। अब्दुल्ला बिन अरीक़त, जो कि नबी का गैर मुस्लिम रहनुमा था मगर अमानतदार था, रास्ता दिखाने के लिए तैयार था। वो मदीना का गैर मरूफ रास्ता जानता था, जो सहराओं और पहाड़ों से गुजरता था। काफिला चल पड़ा। नबी करीम ऊंट पर, हज़रत अबू बकर हम रिकाब और अब्दुल्ला बिन अरीक़त रहनुमा। रास्ते में हर मंजिल पर खौफ के साए, मगर अल्लाह की रहमत का साया था। एक जगह पर नबी करीम ने ऊंट से उतरकर साए में नमाज अदा फरमाई। हज़रत अबू बकर पहरा देते ताकि कोई हमला आवर ना हो। एक मकाम पर कुरैश के सरदारों में से एक शख्स साराका बन मालिक को इत्तला मिली कि नबी करीम फलां समत जा रहे हैं। उसने फौरन घोड़ा तैयार किया, नेज़ा लिया और इनाम की लालच में निकल पड़ा। जब वो काफिले के करीब पहुंचा, हज़रत अबू बकर परेशान हो गए। उन्होंने नबी करीम से अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, सराका हमें पकड़ लेगा। नबी करीम ने खामोशी से ज़मीन की तरफ इशारा फरमाया। इसी वक्त सराका का घोड़ा ज़मीन में धंसने लगा। वो परेशान हुआ, मदद मांगी। नबी करीम ने दुआ फरमाई, घोड़ा निकला। फिर वो दोबारा बढ़ा, दोबारा घोड़ा ज़मीन में धंस गया। तब सराका समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं,
बल्कि सच्चाई के नुमाइंदा है। उसने मुआफ़ी मांगी, अमन का वदा लिया और वापस लौट गया। रास्ते में एक बस्ती में हज़रत उम्माबत के खैमे पर क़याम हुआ। वहाँ भूख का आलम था। उम्माबत के पास एक कमज़ोर बिकरी थी जो दूध न देती थी। नबी करीम ने इससे इजाज़त लेकर बिकरी को हाथ लगाया और अल्लाह के हुक्म से बिकरी दूध देने लगी। सब ने सैर होकर पिया। ये खबर बाद में मक्का और मदीना में मशहूर हुई कि मोहम्मद जहाँ जाते हैं बरकत लाते हैं। आखिरकार कई दिन के सफ़र के बाद नबी करीम और हज़रत अबू बकर क़बा पहुँचे, जो कि मदीना के मुज़ाफ़ात में एक बस्ती थी। वहाँ क़याम किया गया और पहली मस्जिद यानी मस्जिद क़बा की बुनियाद रखी गई। फिर चंद दिन बाद मदीना की तरफ रवानगी हुई। मदीना के लोग रोज़ इंतज़ार करते थे, ऊंची जगहों पर चढ़कर देखते थे। जब नबी करीम दाखिल हुए तो मदीना की फ़ज़ाएं नग़मों से गूंज उठीं। तला अलबदर अलीना मन सनत अलविदा। मदीना में इस्लाम की एक नई तारीख़ का आगाज़ हुआ। मगर ये सब कुछ इस खामोश रात से शुरू हुआ था जब नबी और हज़रत अबू बकर गार सौर में छुपे हुए थे। वो गार जो मिट्टी से बना था मगर ईमान की पनागाह बन गया, जिसमें ना दरवाज़ा था ना कुफुल, मगर दुनिया का सबसे महफूज मकाम बन गया। हिस्सा सिवम मुसलसल कहानी के अंदाज में। मदीना की सरजमीन अब करीब आ चुकी थी। काफिला थका हुआ मगर रूहानी तौर पर मजबूत था। हज़रत अबू बकर की आंखों में शुक्र के आंसू थे और नबी करीम का चेहरा चांद की मानिंद रोशन। रास्ते की हर परेशानी, हर थकन और हर खतरा अब माजी बनता जा रहा था। अल्लाह ताला की हिफाजत का ये आलम था कि कुफार की पूरी ताकत, साजिशें, इनामात, घोड़े, नेज़े सब बेअसर हो गए। मदीना से पहले क़बा में क़याम का मौका मिला, जहां हज़रत कुलसूम बिन हदिम के घर मेहमान नवाजी की गई। लोग एक झलक देखने के लिए दीवानावार आ रहे थे। मुहाजिरीन जो पहले मदीना पहुंच चुके थे वो भी क़बा आ गए। नबी करीम ने यहाँ सबसे पहले एक मस्जिद की बुनियाद रखी, जो आज भी मस्जिद क़बा के नाम से मौजूद है, पहला इस्लामी मरकज़। क़बा में चंद दिन गुजारने के बाद नबी करीम मदीना की जानिब रवाना हुए। मदीना की गलियां, खजूर के दरख्त, बच्चे, बूढ़े, जवान सब इस्तकबाल के लिए खड़े थे। बच्चियां दफ बजा रही थीं और मदीना की फिजा गूंज रही थी। तला अलबदर अलीना मन सनत अलविदा, वजब अलश्कर अलीना माँ दुआ लिलेदा। ये वो लम्हा था जो सदियों से ज़मीन ने नहीं देखा था। इंसानियत का नजात दहिंदा मदीना में कदम रख रहा था। ये हिजरत थी, मगर ये दरअसल एक नई दुनिया की शुरुआत थी। एक ऐसा निज़ाम जो अदल, अमन, रहम, इल्म, मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम लेकर आया। इधर मक्का में कुफ्फार को समझ नहीं आ रही थी कि नबी करीम कैसे बच निकले। वो सब कुछ कर चुके थे। नौजवानों को कातिल बनाकर भेजा, रात को घर का मुहासरा किया, कत्ल का मंसूबा तरतीब दिया, ऊँटों का इनाम रखा, रास्ते में हर समत जस्तजू की। मगर जिसकी हिफाजत खुद रब अल आलमीन फरमा रहा हो, इसका क्या कोई कुछ बिगाड़ सकता है। कुफ्फार के सरदार अबू जहल, उतबा, शीबा, उमिया और दीगर सब अपनी नाकामी पर जल रहे थे। नबी करीम के खाली बिस्तर पर हज़रत अली को देखकर उनके चेहरों का रंग अलिफाड़ चुका था। उन्होंने हज़रत अली से पूछा, मोहम्मद कहाँ हैं? जवाब में हज़रत अली ने सुकून से कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो अल्लाह के हुक्म से जाता है इसकी वापसी भी बाहिफाजत होती है। मदीना पहुंचकर सबसे पहला काम भाईचारे की बुनियाद रखना था। नबी करीम ने मवाख़ात कायम की, यानी मुहाजिरीन और अंसार को जोड़ा ताकि वो दीन, तिजारत, जिंदगी और हर मामले में एक दूसरे का सहारा बने। हज़रत अबू बकर, जो गार सौर में नबी के साथ कदम बा कदम चलते रहे, अब मदीना में नबी के दाएं तरफ मौजूद थे। उनकी खिदमात, कुर्बानियाँ, मोहब्बत और इताअत हर मुसलमान के लिए मिसाल बन गई। गार सौर का वो वाक़या जो चंद दिन का किस्सा था,
صدیوں کی رہنمائی بن گیا۔ جس وقت دشمن قریب تھا، جب نیچے سے گھوڑوں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، جب حضرت ابوبکر کا دل دھڑک رہا تھا، اور جب نبی کریم نے فرمایا، یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے تاریخ بدل دی۔ اللہ کا ساتھ، اللہ کا توکل اور اللہ کی رحمت ہر اس شخص کے لیے کافی ہے جو سچے دل سے اس پر یقین رکھے۔ ایک بار حضرت ابوبکر نے نبی کریم سے عرض کیا، رسول اللہ، مجھے اپنا ساتھ نصیب ہو جائے، بس یہی کافی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، ابو بکر، تم میرے ساتھی ہو دنیا میں بھی اور غار میں بھی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ غار ثور کا ساتھ ایمان کی سب سے بڑی پہچان بن چکا تھا۔ صدیوں بعد بھی جب کوئی مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ غار ثور کے واقعے کو یاد کرتا ہے۔ جب وسائل ختم ہوں، جب دشمن غالب ہو، جب راستے بند ہوں، تب وہی آیت دل کو سکون دیتی ہے۔ غار ثور، جو ایک پہاڑی غار تھا، آج حرم مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ وہاں جا کر کوئی اونچی آواز نہیں لگاتا، کوئی شور نہیں کرتا، بلکہ سب خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں اللہ کا وہ وعدہ یاد آتا ہے جو اس نے نبی کریم کے ساتھ فرمایا۔ سورہ التوبہ 40